ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کے، اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے، دیکھو کہیں اجڑے نہ ہمارا یہ باغیچہ، اس کو لہو سے اپنے شہیدوں نے ہے سینچا، اس کو بچانا جان مصیبت میں ڈال کے، اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے۔ دنیا کی سیاست کے عجب رنگ نیارے، چلنا ہے مگر تم کو تو قرآن کے سہارے، ہر ایک قدم اٹھانا ذرا دیکھ بھال کے، اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے۔ قائد اعظم محمد علی جناح 25 دسمبر 1876 کو پیدا ہوئے اور 11 ستمبر 1948 کو یہ چراغ بجھ گیا۔ ایک پاکستانی سیاستدان اور آل انڈیا مسلم لیگ کے لیڈر تھے جن کی قیادت میں مسلمانوں نے برطانیہ سے آزادی حاصل کی، یوں پاکستان کا قیام عمل میں آیا اور آپ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بنے۔ سرکاری طور پر پاکستان میں آپ کو قائد اعظم یعنی سب سے عظیم رہبر اور بابائے قوم یعنی قوم کا باپ بھی کہا جاتا ہے۔ محمد علی جناح کا یوم پیدائش پاکستان میں قومی سطح پر منایا جاتا ہے۔ اس دن پاکستان میں عام تعطیل ہوتی ہے۔ آغاز میں آپ انڈین نیشنل کانگریس میں شامل ہوئے اور مسلم ہندو اتحاد کے حامی تھے۔ آپ ہی کی کوششوں سے 1916 میں آل انڈیا مسلم لیگ اور انڈین نیشنل کانگریس میں معاہدہ ہوا۔ کانگریس سے اختلافات کی وجہ سے آپ نے کانگریس پارٹی چھوڑ دی اور مسلم لیگ کی قیادت میں شامل ہو گئے۔ آپ نے خود مختار ہندوستان میں مسلمانوں کے سیاسی حقوق کے تحفظ کی خاطر مشہور 14 نکات پیش کیے۔ مسلم لیڈروں کے درمیان اختلافات کی وجہ سے آپ انڈیا چھوڑ کر برطانیہ چلے گئے۔ بہت سے مسلمان رہنماؤں خصوصاً علامہ اقبال کی کوششوں کی وجہ سے آپ واپس آئے اور مسلم لیگ کی قیادت سنبھالی۔ جناح عقائد کی نقطہ نظر سے ایک معتدل مزاج مسلمان تھے۔ کئی مسلمان رہنماؤں نے جناح کو 1934 ہندوستان واپسی اور مسلم لیگ کی تنظیمی نو کے لیے راضی کیا۔ جناح 1940 کے قرارداد پاکستان قرارداد لاہور کی روشنی میں مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست بنام پاکستان بنانے کے لیے مصروف عمل ہو گئے۔ 1946 کے انتخابات میں مسلم لیگ نے مسلمانوں کی بیشتر نشستوں میں کامیابی حاصل کی اور محمد علی جناح نے پاکستان کے قیام کے لیے براہ راست جدوجہد کی مہم کا آغاز کر دیا، جس کے رد عمل کے طور پر کانگریس کے حامیوں نے جنوبی ایشیا میں گروہی فسادات کروا دیے۔ مسلم لیگ اور کانگریس کے اتحاد کی تمام تر کوششوں کی ناکامی کے بعد آخرکار برطانیہ کو پاکستان اور بھارت کی آزادی کے مطالبے کو تسلیم کرنا پڑا۔ بحیثیت گورنر جنرل پاکستان محمد علی جناح نے لاکھوں پناہ گزینوں کی آبادکاری، ملک کی داخلی و خارجی پالیسی، تحفظ اور معاشی ترقی کے لیے جدوجہد کی۔ آپ کے والد گجرات کے ایک مالدار تاجر تھے جو کہ محمد علی جناح کی پیدائش سے کچھ عرصہ پہلے کاٹھیا واڑ سے کراچی منتقل ہوئے۔ ان کے دادا کا نام جناح تھا جو کہ کاٹھیا واڑ کی ریاست گونڈل میں بھاٹیا نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ ابتدائی طور پر یہ گھرانہ ہجرت کر کے ملتان کے نزدیک ساہیوال میں آباد ہوا تھا۔ کچھ ذرائع سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ جناح کے آباء و اجداد ساہیوال پنجاب سے تعلق رکھنے والے تھے جو کہ بعد میں مسلمان ہو گئے۔ محمد علی جناح کے دیگر بہن بھائیوں میں 3 بھائی اور 3 بہنیں تھیں۔ بھائیوں میں احمد علی، بندے علی اور رحمت علی، جبکہ بہنوں میں مریم جناح، فاطمہ اور شیری جناح شامل تھیں۔ محمد علی جناح کی مادری زبان گجراتی تھی لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ کچھی، سندھی، اردو اور انگریزی بھی بولنے لگے تھے۔ ان سب زبانوں میں وہ انگریزی سب سے بہترین طریقے سے بولا کرتے تھے۔ نوجوان جناح ایک بے چین طالب علم تھے جنہوں نے کئی تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کی۔ کراچی میں سندھ مدرسۃ الاسلام، ممبئی میں گوکل داس پیچ پرائمری اسکول اور بالآخر مسیحی تبلیغی سماجی اعلیٰ درجاتی اسکول میں بھی تعلیم حاصل کی۔ کراچی میں آپ زیر تعلیم رہے جہاں سے آپ نے 16 سال کی عمر میں میٹرک کا امتحان جامعہ ممبئی سے پاس کیا۔ اسی سال 1892 میں آپ کی برطانیہ کی گراہم شپنگ اینڈ ٹریڈنگ کمپنی میں تربیتی پیشنامے کے لیے گئے، ایک ایسا تجارتی کام جو کہ پونجا رائی جناح کے کاروبار سے گہرا تعلق رکھتا تھا۔ تاہم برطانیہ جانے سے پہلے آپ کی والدہ کے دباؤ پر آپ کی شادی آپ کے دور کی ایک رشتے دار احمی بائی سے کر دی گئی۔ لندن جانے کے کچھ عرصے بعد آپ نے ملازمت چھوڑ دی اور قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے داخلہ لے لیا اور 1895 میں وہاں سے قانون کی ڈگری حاصل کی اور 19 سال کی عمر میں برطانیہ سے قانون کی ڈگری حاصل کرنے والے کم سن ترین ہندوستانی کا اعزاز حاصل کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ سیاست میں بھی آپ کی دلچسپی بڑھنے لگی اور آپ ہندوستانی سیاستدانوں سے متاثر ہونے لگے۔ اس دوران آپ نے دیگر ہندوستانی طلباء کے ساتھ مل کر برطانوی پارلیمنٹ کے انتخابات میں سرگرمی کا مظاہرہ کیا۔ اس سرگرمیوں کا اثر یہ ہوا کہ جناح وقت کے ساتھ ساتھ ہندوستان کی آئین ساز خود مختار حکومت کے نظریے کے حامی ہوتے گئے اور آپ نے ہندوستانیوں کے خلاف برطانوی گوروں کے حتک آمیز اور امتیازی سلوک کی مذمت کی۔
मुंबई में जिना हाउस वाक़ था। इंग्लिस्तान में क़याम के आखिरी दिनों में जिना वालिद के कारोबार की तबाही की वजह से वापस बरतानिया से तशरीफ लाए और मुंबई में वकालत का आगाज किया और जल्द ही एक बहुत ही नामी गिरामी वकील बन गए। उस जमाने में नेहरू आपके सामने के वकील थे, लेकिन उनकी वकालत आपके मुकाबले में इतनी चलती ना थी। खुसूसन सरफरोज शाह के सियासी मुकदमे की जीत ने आपकी शोहरत और नाम को चार चांद लगा दिए। ये मुकदमा 1905 में मुंबई की हाईकोर्ट में दायर हुआ, जिसमें जिना ने सरफरोज शाह की पैरवी की और जीत भी जिना ही के हिस्से में आई। जिना ने जनूबी मुंबई में वाक़ मालाबार में एक घर तामीर बनवाया, जो कि बाद में जिना हाउस कहलाया। एक कामयाब वकील के तौर पर उनकी बढ़ती शोहरत ने हिंदुस्तान के मारूफ रहनुमा गंगाधर की तवज्जो उनकी जानिब करवाई और यूं 1905 में बाल गंगाधर ने जिना की खिदमत बतौर दफाई मुशीर कानून हासिल की, ताकि वो इन पर सल्तनत बरतानिया की जानिब से दायर किए गए नुक्से अमन के मुकदमे की पैरवी करे। जिना ने इस मुकदमे की पैरवी करते हुए अपने मौक्तिल के हक में दलाइल देते हुए कहा कि एक हिंदुस्तानी अगर अपने मुल्क में आजाद और खुद मुख्तार हुकूमत के क़याम की बात करता है तो ये नुक्से अमन या गद्दारी के ज़ुमरे में नहीं आता। और जिना ने काफी कोशिशों के बाद उन्हें आजाद करवा दिया। ताहम बाद में बाल गंगाधर को इसी किस्म के मुकदमे में कैद मामुशक्कत की सजा सुनाई गई। पहले जंग अजीम के दौरान जिना ने दीगर हिंदुस्तानी तरक्की पसंदों के साथ बरतानवी जंग की तारीफ की, इस उम्मीद के साथ कि शायद इसके सिले में हिंदुस्तानियों को सियासी आजादी से नवाजा जाए। महात्मा गांधी की हिंदू परस्त पॉलिसी ने जिना को कांग्रेस छोड़ने पर मजबूर कर दिया। ताहम इब्तिदा में जिना ने 1906 में कायम की गई ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में शमूलियत अख्तियार करने से गुरेज किया, क्योंकि मुस्लिम लीग पूरे हिंदुस्तान के बजाय सिर्फ मुसलमानों की नुमाइंदा जमात थी। आखिरकार 1913 में जिना ने मुस्लिम लीग में शमूलियत अख्तियार कर ही ली और 1916 में लखनऊ में होने वाले इजलास में मुस्लिम लीग के सदर मुंतखब कर लिए गए। जिना 1916 को कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान होने वाले मिसाक लखनऊ के मेमार थे, जो कि खुद मुख्तारी बरतानिया से आजादी और इस जैसे दीगर मुतफक्का मसाइल से निपटने के लिए एक मुतहदा प्लेटफॉर्म था। हिंदुस्तान वापसी के बाद जिना साहब ने मुंबई में क़याम किया। बरतानिया की सियासी जिंदगी से मुतासर होकर इनको अपने मुल्क में इसी रविश पर बढ़ते हुए देखने की उमंग नमूदार हुई। जिना साहब एक आजाद और खुद मुख्तार हिंदुस्तान चाहते थे। इनकी नजर में आजादी का सही रास्ता कानूनी और आईनी हथियारों का इस्तेमाल करना था, इसलिए उन्होंने इस जमाने की इन तहरीकों में शमूलियत अख्तियार की जिनका फलसफा इनके ख्यालात के मुताबिक था, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस और होम रूल लीग। इसी दौरान में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एक अहम जमात बनकर सियासी उफक पर उभरने लगी। जिना साहब ने मुसलमानों की इस नुमाइंदा जमात पर शमूलियत अख्तियार की। जिना साहब हिंदुस्तान की सियासी और समाजी असलियतों में मजहब की अहमियत को जानते हुए इस बात के कायल थे कि मुल्क की तरक्की के लिए तमाम तर लोगों को मिलकर ही काम करना होगा। इसलिए उन्होंने हिंदुस्तान के दो बड़े अक़वाम यानी हिंदू मुसलमान दोनों को करीब लाने की कोशिश की। जिना साहब की इसी कोशिशों का नतीजा 1916 का मुआहदा लखनऊ था। 1896 में जिना ने इंडियन नेशनल कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार की, जो कि उस वक्त हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात थी। लेकिन उस वक्त के दीगर कांग्रेसी रहनुमाओं की तरह जिना ने अक्सर आजादी की हिमायत करने के बजाय उन्होंने हिंदुस्तान की तालीम, कानून, सकाफत और सनत पर बरतानवी असरात को हिंदुस्तान के लिए मौसर करार दिया। जिना 60 रुकनी मरकजी मुशावरती काउंसिल के मेंबर बन गए, लेकिन इस काउंसिल की अपनी कोई हैसियत या ताकत नहीं थी और उसमें शामिल ज्यादातर अफराद गैर मुंतखब सल्तनत बरतानिया की जुबान बोलने वाले यूरोपीय थे। इसके बावजूद जिना मुतहरिक रहे और कमोबिल की शादी के लिए कानून और मुसलमानों के वक्त के हक को कानूनी शक्ल देने के लिए काम करते रहे। इन्हीं काविशों के नतीजे में सिंधरसिस्ट कमेटी बनाई गई, जिसने डेराडन में इंडियन मिलिट्री अकेडमी के क़याम में कलीदी किरदार अदा किया। शहनशाह औरंगजेब के बाद हिंदुस्तान ने इतना बड़ा मुसलमान लीडर नहीं पैदा किया जिसके गैर मुतज़ल्ज़ल ईमान और अटल इरादे ने 10 करोड़ शिकस्तोदा मुसलमानों को कामरानियों में बदल दिया हो। लॉर्ड माउंटबेटन ने अपने हुकूमती ब्रीफिंग में जिना के बारे में मुतनब्बे करते हुए इन्हें सबसे मुश्किल तरीन राह करार दिया और बकौल इनके उन्होंने सबसे बड़ी परेशानी खड़ी कर रखी थी। नेज़ वो कहते थे इस मुल्क हिंदुस्तान में अब तक कोई भी जिना के दिमाग में नहीं झांक सका है। 5 अप्रैल से पहले ये लोग 6 मरतबा मिले, यानी लॉर्ड माउंटबेटन और कायदे आजम। इस मुलाकात में मौजूद तनाव की कैफियत में इस वक्त कमी आई जब जिना ने वायसराय और उनकी बेगम के दरमियान में खड़े होकर तस्वीर खिंचवाई और अजराहे मजाक कहा कि 2 कांटों के दरमियान मैं एक गुलाब हूं। अगरचे वायसराय ने अपनी बेगम को दरमियान में रखने का फैसला किया, लेकिन जिना के इस मजाक को इससे कबल ही भाग गए थे। जिना ने भी मजाक में सच्ची बात कह दी थी। लॉर्ड माउंटबेटन जिना से मुस्बत तौर पर मुतासिर ना थे और उन्होंने अपने साथियों से भी मायूसी का इजहार किया था। वो ये कहते थे कि मैं जिना के पाकिस्तान पर इसरार देने पर बेजार हूं। मोहम्मद अली जिना को यह खौफ था कि मुमलिकत मुत्तहिदा हिंदुस्तान में कहीं पाकिस्तान का मामला ही गोल कर दिया ना जाए और अंग्रेजी सरकार इख्तियारात को कांग्रेस की तरफ मोड़ देगी और मुसलमानों के खुद मुख्तारी के मुतालबे को नुकसान पहुंचेगा। मोहम्मद अली जिना ने लॉर्ड माउंटबेटन से बरतानवी हिंदी फौज को आजादी से कबल तकसीम करने का मुतालबा किया, जो उनके ख्याल में 1 साल तक वक्त ले सकती थी। वायसराय ने इस तकसीम को आजादी के बाद करने का सोचा था, लेकिन जिना साहब ने आजादी से कबल इसका इसरार कर दिया। उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन ने लिखा कि ऐसा लगता है कि मुस्लिम लीग फौज की जानिब रुजू करेगी। अगर पाकिस्तान अपने असल हाल में आजादी ना हासिल कर पाई तो फिर वो फौज की मदद लेगी।
वायसराय असेंबली की रिपोर्ट पर मनफी मुस्लिम रद्द अमल से भी मुतासिर थे, जो मरकजी असेंबली को ज्यादा इख्तियारात तफवीज करने का कह रहे थे। 2 जून को वायसराय ने मुंतकी मंसूबा हिंदुस्तानी रहनुमाओं को सामने पेश किया। 15 अगस्त को हुकूमत मुमलिकत मुत्तहिदा 2 मुल्कों को इख्तियारात मुंतकिल कर देगी। सूबाई असेंबलियों को इख्तियारात हासिल है कि वो मरकजी असेंबली के साथ रहे या नए को अपनाए। जो पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं वो उनको वोट डाले और जो हिंदुस्तान में शामिल होना चाहते हैं वो हिंदुस्तान को वोट डाले। एक सरहदी कमीशन 2 मुल्कों की सरहद का फैसला करेगी। शुमाल मगरबी सूबे और असम के मुस्लिम अक्सरियत इलाके सिलहट जो मशरकी बंगाल से मुंसलिक थे वो भी रायदही दे सकते हैं। 3 जून को लॉर्ड माउंट बेटन, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना और सिख रहनुमा बालदीर सिंह ने रेडियो पर रस्मी तौर पर ऐलान किया। जिन्ना ने अपनी तकरीर में आते के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया, जो उनकी तहरीर में शामिल ना था। कुछ हफ्ते पंजाब और बंगाल में वोटिंग हुई जिसमें तकसीम का फैसला हुआ, जबकि असम के इलाके सिलहट और सूबा सरहद वालों ने पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला सुनाया और सिंध बलूचिस्तान असेंबलियों ने भी पाकिस्तान के हक में राय दी। 4 जुलाई 1947 को लियाकत अली खान ने वायसराय से मोहम्मद अली जिन्ना साहिब को पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल बनाने की सिफारिश की, मगर इस सिफारिश ने वायसराय को सीखपा कर दिया, जो इन दोनों मुल्कों में बैक वक्त ये ओहदा रखना चाहते थे। वो दोनों मुल्कों की आजादी पर इनका सबसे पहला गवर्नर जनरल कहलाने का ख्वाहिशमंद थे, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने इनका ख्वाब पूरा नहीं होने दिया। उन्होंने कहा मुसलमान मुल्क का गवर्नर जनरल लाजमी तौर पर मुसलमान ही होगा। याद रहे कि अभी पिछले ही दिनों 2021 में एक तकरीर में एक बहुत बड़े फौजी रहनुमा ने जिन्ना को सलूट किया था और कहा था कि मोहम्मद अली जिन्ना की वजह से पाकिस्तान के पहला गवर्नर जनरल एक पाकिस्तानी और एक मुस्लिम थे, जबकि हमारी बेवकूफियों की वजह से हमारे पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंट बेटन ही थे। चुनाचा हिंदुस्तान आजादी हासिल करने के बाद भी पाकिस्तान की बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने अपना पहला गवर्नर जनरल ही कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को बनाया था। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना कराची रवाना हुए और जब कराची के पास आए तो उन्होंने कहा दैट इज द एंड ऑफ दैट, यानी कि अब हिंदुस्तान की इख्तिताम शुरू हो चुका है और पाकिस्तान बनने का जिक्र शुरू हो गया है और अनकरीब पाकिस्तान बन जाएगा। उन्होंने कहा कि आप देखेंगे कि हिंदू हिंदू और मुसलमान मुसलमान रहेंगे, किसी को पाकिस्तान बनने से कोई नुकसान नहीं होगा। आपका ताल्लुक किसी मसलक या अकीदे से हो, लेकिन हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। हमारा मतलब सिर्फ इतना है कि मुसलमानों को एक अलहदा रियासत मिले जहां वो आजादी से इस्लामी उसूलों के मुताबिक जिंदगी गुजार सके। जिन्ना साहब की इन कोशिशों से, इन अमली कोशिशों से, सियासी कोशिशों से 14 अगस्त को पाकिस्तान वजूद में आया और जिन्ना साहब ने कराची में खुशी मनाई। एक ऐनी शाहिद लिखता है कि यहां वाकई पाकिस्तान के बादशाह हाथ में किताब उठाए मौलवी, स्पीकर और वजीर आजम खड़े हैं, जिनकी तवज्जो एक मजबूत कायदे आजम की जानिब है। 11 सितंबर 1948 कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना हमारे अजीम रहनुमा, हमारी कौम के बाप और पाकिस्तान के खालिक का आखिरी वक्त। डॉक्टरों ने कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को ताकत का एक इंजेक्शन लगाया और डॉक्टर इलाही बख्श के बकौल जब उन्होंने होश में आने पर जिन्ना साहब से कहा तो वो जल्दी ठीक हो जाएंगे, तो उन्होंने मुस्कुराने की कोशिश की और आहिस्ते से कहा नहीं, अब मैं जिंदा नहीं रहूंगा। डॉक्टर रियाज अली शाह ने लिखा है कि मोहम्मद अली जिन्ना साहब के आखिरी अल्फाज अल्लाह और पाकिस्तान थे। फातिमा जिन्ना माई बरादर में लिखती हैं कि जिन्ना साहब ने 2 घंटे की पुरसुकून और बेखलल नींद के बाद अपनी आंखें खोली, सर और आंखों से मुझे अपने करीब बुलाया और मेरे साथ बात करने की आखिरी कोशिश की। इनके लबों से सरगोशी के आलम में निकला खुदा हाफिज, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर इनका सर दाएं जानिब को आहिस्तेगी से ढलक गया और इनकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। नाजरीन, ये वो अजीम इंसान थे जिनके बारे में शायद हम जितने भी प्रोग्राम बना लें, जो कुछ भी लिख लें, इनकी अजमत का हम तस्करा नहीं कर सकते। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें एक ऐसा अजीम लीडर दिया था जिसने हमें जिस तरह से, जिस मुश्किलात से, जिस मुसीबतों से, जिस मसाइब से ये मुल्क हासिल करके दिया है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की इन कोशिशों के लिए वाकई अभी भी काम करें और अपने मुल्क को दिन दुनी रात चौगनी तरक्की देने की हर मुमकिन कोशिश करें।